indication for contrast, because usually we do HRCT chest, that is non-contrast imaging, and then sometimes we go for the contrast. So that's why it's very important to understand when we should order for the contrast CT chest, or more than 90% times it suffices to do HRCT chest only. So whenever you have to see the hilar structures or mediastinal structures, pleural disease, lobar collapse, pulmonary embolism, aortic dissection, or coronary CT angiography. For these purposes you need contrast. Otherwise HRCT will give you information for the CT chest. What is the difference between the non-contrast and contrast? You can see the mediastinal structures. Because there is some vascular structures in the mediastinum, so you will get those structures become bright when you give the contrast. Then CT chest. There are three things. One is CT chest with contrast, CT chest, then HRCT chest, and CT pulmonary angiogram. So there are three types of CT which is done for the chest purposes. So this is the standard CT and this is the high resolution CT, HRCT. So what is the difference between the HRCT and standard CT? You know the structures better, the resolution is better. That's why it is known as high resolution CT, HRCT. Okay, why high resolution is required? Because you have to differentiate between the lung tissue. So lung tissue, otherwise it looks like a black. And if you want to differentiate between the secondary lobule, you have to have better resolution. That's why you need HRCT chest. So CT is all about density. You know the air, fat, water, soft tissue, blood and bone. So Houn's unit, so 1000 Houn's unit bone. Bone is hyperdense. This is white structure, bone is. And black, air is black, minus 1000. So minus 1000 to plus 1000, and water is 0. So this is the density of the different tissues when they become hyperdense or hypodense in the CT scan. Then thoracic compartment. This is the mediastinum in the chest X-ray as well as the CT scan. This is the mediastinal structures. And when you do hilar structures, this is the hilar structures in the CT scan, and this hilar structure at, because in sarcoidosis, if you are looking for the hilar lymphadenopathy, you have to look at this point, okay, for hilar structures. Then these are the lungs, then soft tissue, and there are three types of windows: mediastinal window, lung window, and bone window. So if you are looking for a trauma patient, then you should look for the bone window to see the rib fracture or sternal fracture. You have to look for the bone window. Then mediastinal structure, mediastinal window. In the mediastinum window, aortic arch is the landmark. So this is the aortic arch, this structure. Okay, this structure is the aortic arch of aorta, and this is the arch of aorta. This is the superior vena cava, and this is the right pulmonary artery, left pulmonary artery. This is main pulmonary artery. This is inverted Y-shaped structure. If you are suspecting pulmonary embolism, you have to see the thrombus in the right pulmonary artery or left pulmonary artery, or maybe in the pulmonary trunk. So saddle type thrombus or any type of thrombus you might see in this inverted Y-shaped structure, which is known as pulmonary trunk and the right and left pulmonary artery. So this is the dense contrast in the SVC and right atrium, and this is the inverted Y-shaped structure. You have to look for the pulmonary embolism. This is the right pulmonary artery, left pulmonary artery. This is the main pulmonary trunk. This is the right heart chamber, right ventricle, left ventricle. This is the interventricular septum. Yesterday we have seen in the CT abdomen also. What is this?
So saddle thrombus in the right pulmonary artery. Diagnosis is pulmonary embolism. What is this? Aortic dissection. Okay. So these are the mediastinal structures. So you have to focus for these diagnosis in the mediastinal structures. Then esophagus. This is the esophagus structure. Yesterday we have also seen this. Then lung window. Trachea is the landmark. So this is the right lung and left lung, and then practical approach for interpretation of HRCT. So the most important thing is the anatomy of the secondary lobule, basic HRCT patterns, distribution of abnormalities, and the DD of interstitial lung disease. So there are so many differential diagnoses for the interstitial lung disease, but HRCT देख के, for your understanding, it's important to say that it's a some interstitial lung disease. आपको ये लैंगर्स है, हेंसेल इंसिस्टियोसाइटोसिस है, या कोई और डीडी है, ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, उतनी डायग्नोसिस बनाने की ज़रूरत नहीं है. फॉर द एग्ज़ाम पर्पजेज हो सकता है कि आपको प्रेजेंटेशन में थोड़ा टफ लगे, बट यू नीड नॉट टू मेक अ एक्चुअल डायग्नोसिस इन द एग्जाम. इट्स ए अम्ब्रेला दैट इज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. यू कैन से दिस इज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. उससे एग्जाम में काम चल जाएगा, बट यू नो दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स. There, you know the segments of the right and left lungs. So this is a apical, medial, medial lateral, superior. So these are the bronchopulmonary segments. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं तो वी शुड नो द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, कैसे कैसे हमें, है ना, व्हेन वी ट्रेवल इनटू द ट्रैकिया एंड ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री. Then indication of HRCT. CT finding have to be combined with the history of the patient and important clinical findings. When we study patient with HRCT, we have to realize that we are looking for selected group of patient, and common diseases like pneumonia, pulmonary embolism, cardiogenic edema and lung carcinoma already ruled out. तो बात समझ आ रही है कि मैक्सिमम डिजीज़ जो कॉमन डिजीज़ हैं लाइक निमोनिया, कार्डियोजेनिक एडिमा, है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या ये सब हम ऑलरेडी रूल्ड आउट कर चुके हैं बाय द चेस्ट एक्सरे और CTPA और डिफरेंट. व्हेन वी आर ऑर्डरिंग HRCT, इट मीन्स वी आर लुकिंग सम अनकॉमन डिजीजेज, और मोटा मोटा आप बोल सकते हो कि वी आर लुकिंग फॉर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. बात समझ आ रही है कि चेस्ट एक्सरे इज सफिशिएंट फॉर ए मेकिंग ए डायग्नोसिस ऑफ द पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोनिया. उसके लिए आपको HRCT कराने की जरूरत नहीं है. अगर आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट करते हो तो गो फॉर द CTPA, HRCT नहीं कराना है. आप HRCT ऑर्डर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि यू आर लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डायग्नोसिस विच कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जैसे कि या लाइक सार्कोइडोसिस, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस, लिम्फेंजाइटिक कार्सिनोमेटोसिस, यूजुअल इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस. मतलब इतनी डिफिकल्ट है कि प्रोनाउंस करने में भी मुश्किल लग रही है. तो कुल मिला के अगर ऐसी डायग्नोसिस आप सस्पेक्ट कर रहे हो तभी आप HRCT ऑर्डर करो, अदरवाइज चेस्ट एक्सरे, CTPA, अदर इन्वेस्टिगेशन सफिशिएंट. तो अब हम आते हैं HRCT में हमें दिखता क्या है. HRCT का जो यूनिट है ना, दैट इज नोन एज सेकेंडरी लॉब्यूल. दिस इज द सेकेंडरी लॉब्यूल. सेकेंडरी लॉब्यूल में क्या, इट्स ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विच कंटेन्स पल्मोनरी आर्टरी, टर्मिनल ब्रोंकियोल, दीज आर एसाइनस. एंड इसमें क्या है कि सेकेंडरी लॉब्यूल इज द एनाटॉमिक यूनिट ऑफ पल्मोनरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेकेंडरी लॉब्यूल. जैसे कि ये सेकेंडरी लॉब्यूल का केवल पेरिफेरी इन्वॉल्व है या उसका सेंटर इन्वॉल्व है, इस बात पर डिपेंड करेगा. तो it is measured of 1 to 2 centimeter, made up of 5 to 15 pulmonary acini that contains the alveoli, and pulmonary vein and lymphatics run in the periphery of the lobule, and there are two lymphatic systems, central network, peripheral network. तो pulmonary vein और lymphatics ये तो periphery पे हैं. और अगर अब आप सोचो, अगर पैथोलॉजी
लिम्फेटिक्स के थ्रू आ रही है तो वो कहाँ पे होगी? पेरिफ्री पे। अगर पैथोलॉजी टर्मिनल ब्रोंकियोल एयर के थ्रू आ रही है ना, या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ रही है तो वो सेंटर में होगी। समझ आ रही है बात? ये देखो, दिस इज द एक्सरे सीटी स्कैन और दीज आर द सेकेंडरी लॉब्यूल्स। ये इस तरह से सेकेंडरी लॉब्यूल्स आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं और यू कैन सी दोज स्ट्रक्चर्स इन द HRCT। नॉर्मल सीटी, स्टैंडर्ड सीटी पे आपको ये सेकेंडरी लॉब्यूल्स नहीं दिखाई देंगे। एंड यू हैव टू पिक द पैटर्न ऑफ द सेकेंडरी लॉब्यूल इन्वॉल्वमेंट इन दैट पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, जैसे कि देयर आर टू बेसिक कॉन्सेप्ट, वन इज सेंट्री लॉबुलर एरिया, पैरालिम्फेटिक एरिया। तो इट इज यूजुअली द साइट ऑफ डिजीज दैट एंटर्स द लंग थ्रू द एयरवेज, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस, सेंट्री लॉबुलर एम्फाइसीमा। ये जो डिजीज हैं ये सेंटर को इन्वॉल्व करेंगी। दूसरा पेरीलिम्फेटिक एरिया, इट इज द यूजुअली द साइट ऑफ डिजीज दैट आर लोकेटेड इन द लिम्फेटिक्स और वेन्यूल्स ऑफ द इंटरलोबुलर सेप्टा लाइक सार्कोइडोसिस, लिम्फेंजाइटिक कार्सिनोमेटोसिस, पल्मोनरी एडिमा। Then septal thickening, thickening of the lung interstitium by fluid, fibrous tissue or infiltration by cells results in a pattern of reticular opacities due to thickening of the interlobular septa. So this is a thickening of the interlobular septa. So basic interpretation क्या है? सबसे पहले आपकी structured approach होनी चाहिए HRCT को देखने के लिए कि what is the dominant pattern, either reticular, nodular और high attenuation और low attenuation. रेटिकुलर का मतलब क्या है? लाइंस। नोड्यूल्स का मतलब क्या है? डॉट्स। तो सीटी में अगर आपको लाइंस दिख रही हैं तो रेटिकुलर पैटर्न, डॉट्स दिख रहे हैं तो फिर ये क्या है? नोडुलर पैटर्न। हाई एटेन्यूएशन का मतलब ग्राउंड ग्लासिंग या कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये ग्राउंड ग्लासिंग वर्ड आपको बहुत सुनने में आया होगा कोविड के दौरान, है ना? सब ग्राउंड ग्लासिंग, ग्राउंड ग्लासिंग। हमें ये नहीं समझ आया ग्राउंड ग्लासिंग होती क्या? ग्राउंड ये रहा, ग्लास अलग है। बात समझे, ग्राउंड ग्लासिंग का मतलब क्या है? ग्राउंड ग्लासिंग का सिंपल सा मतलब है, आप क्या समझते हो ग्राउंड ग्लासिंग से? जो ओपेक ग्लास, ओपेक ग्लास समझ लो। ग्राउंड ग्लासिंग का मतलब है जिसके थ्रू यू कैन नॉट सी थ्रू दैट, द ओपेक ग्लास, इट्स द ग्राउंड ग्लासिंग। ओके, तो एनीवे दिस इज द हाई एटेन्यूएशन या कंसोलिडेशन। और लो एटेन्यूएशन का मतलब क्या है? ब्लैकिस, एम्फाइसेमेटस, सिस्टिक लंग डिजीज, हनी कोम्बिंग, वेयर इट इज लोकेटेड विद इन द सेकेंडरी लोब्यूल। देन आपने देखना है कि सेकेंडरी लोब्यूल का पेरिफ्री इन्वॉल्व है, पेरिफ्री इन्वॉल्व है या सेंटर इन्वॉल्व है। वेयर इट इज लोकेटेड विद इन द सेकेंडरी लोब्यूल, देन अपर वर्सेज लोअर, ये अपर लोब इन्वॉल्व है या लोअर लोब इन्वॉल्व है। दूसरा सेंट्रल वर्सेज पेरिफेरल, यानी कि सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट है या पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट है। और आर देयर एनी एडिशनल फाइंडिंग्स लाइक प्लूरल फ्लूइड लिम्फेडेनोपैथी और ट्रैक्शन ब्रोंकियोक्टेसिस। देन बेसिक इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द डोमिनेंट पैटर्न? रेटिकुलर, नोडुलर, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी। वेयर इट इज लोकेटेड? सेंट्री लोबुलर, पेरीलिम्फेटिक और रैंडम। वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द लंग, यानी कि अपर लोब, लोअर लोब या सेंट्रल या पेरिफेरी। और देन इज देयर एनी एडिशनल फाइंडिंग लाइक प्लूरल इफ्यूजन और एडिमा। सो नाउ दिस इज रेटिकुलर पैटर्न। हो सकता है ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको टफ लगे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि HRCT में देखना क्या होता है। हम करा तो देते हैं HRCT, और HRCT को मतलब इंटरप्रेट किस तरह से करना है। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस रेटिकुलर पैटर्न। रेटिकुलर पैटर्न का मतलब क्या है? टू मैनी लाइन्स, ईदर एज अ रिजल्ट ऑफ थिकनिंग ऑफ इंटरलोबुलर सेप्टा और ए रिजल्ट ऑफ फाइब्रोसिस एज इन हनी कोम्बिंग। स्मूथ सेप्टल थिकनिंग, इसमें इंटरस्टिशियल पल्मोनरी एडिमा, लिम्फेंजाइटिक स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमा। नोडुलर और इरेगुलर सेप्टल थिकनिंग अकर इन लिम्फेंजाइटिक स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमा। तो ये है सेप्टल थिकनिंग। ठीक है, देन अब ये पैटर्न दिख रहा है, इस CT स्कैन ऐसा दिखता है HRCT। अब इसको क्या हो, डोमिनेंट पैटर्न कौन सा है इसमें? लाइंस और डॉट्स भी दिख रही हैं ना, डॉट डॉट भी दिख रही हैं। रेटिकुलो नोडुलर पैटर्न, देखो कितना बढ़िया बता दिया। ये ऐसे ही लिख रहे होते हैं उसके डायग्नोसिस में, रेटिकुलो नोडुलर पैटर्न सीन इन द HRCT चेस्ट। तो ये कहाँ से आता है? आपको लाइंस दिख रही है कि डॉट दिख रही है कि दोनों दिख रही हैं? ठीक है, तो बेसिकली दिस इज, अब डायग्नोसिस मान लो इसकी पल्मोनरी लिम्फेंजाइटिक कार्सिनोमेटोसिस, तो खैर है ना, तो ठीक है, इट्स ओके। ये क्या दिख रहा है?
इसमें क्या देखा, ये ग्राउंड ग्लासिंग है, ये ग्राउंड ग्लासिंग है, ये यहाँ जहाँ जहाँ ओपेक ग्लास दिख रहा है दैट इज देयर आर ग्राउंड ग्लासिंग। तो है ना, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मूथ सेप्टल थिकनिंग विद ए ग्रेविटेशनल डिस्ट्रीब्यूशन और डायग्नोसिस ऑन द सिटी ऑफ कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। तो बेसिकली हमें डायग्नोसिस इससे नहीं बनानी है, क्योंकि डायग्नोसिस हम बना भी नहीं पाएंगे HRCT के बेस पे। बट HRCT कब कराना है, व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में नाम देना तो मुश्किल है, बट अगर आपको एग्जाम में ऐसा मिलता है HRCT तो यू कैन से देयर इज सम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और रेटिकुलोनोडुलर पैटर्न और वट एवर, जो भी आप बता सकते हो। ये क्या है, दिस इज नोन एज क्रेजी पेविंग पैटर्न। आपने पुराने घरों में देखा था फर्श, मार्बल का फर्श कैसे बनता था, छोटे छोटे पत्थर लगा दिए जाते हैं डिफरेंट कलर के, वो देखा, दैट इज ए क्रेजी पेविंग पैटर्न। तो इसमें क्या है, कहीं पे ब्लैक कहीं पे वाइट, है ना, इस तरह के लग रहा है, छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं। दिस इज द क्रेजी पेविंग पैटर्न। कैसे बनता है ये, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या है, कंसोलिडेशन है, और कहीं कहीं पे क्या, एयर ट्रैपिंग है। जो एयर ट्रैपिंग है दैट इज द ब्लैक एरिया, और जहां पे कंसोलिडेशन है दैट इज ए वाइट एरिया। दैट्स वाई दिस पैटर्न अपीयर्स, दिस इज नोन एज क्रेजी पेविंग पैटर्न। ठीक है, इसकी डीडीज हैं। पहले लगता था कि एल्वुलर प्रोटीनोसिस के लिए ये स्पेसिफिक है, बट नाउ इट हैज़ बीन सीन इन सो मैनी डिजीज। ये क्या है, इसमें रेटिकुलोनोडुलर पैटर्न दिख रहा है। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो है, दिस इज अ मीडियस्टल स्ट्रक्चर और दीज आर द हाइलर लिम्फ नोड्स। तो अगर हाइलर लिम्फेडेनोपैथी अलॉन्ग विद द रेटिकुलोनोडुलर पैटर्न, डायग्नोसिस इज सार्कोइडोसिस। दिस इज द नोडुलर पैटर्न। ये क्या है, हो सकता है हम डायग्नोसिस बनाने बैठे भी नहीं है, नाम से बनेगी, हमें ट्राई भी नहीं करना, समझ रहे हो। तो डायग्नोसिस, क्योंकि ये डायग्नोसिस बनाने का काम किसका है, जिनकी ब्रेड एंड बटर है, रेडियोलॉजिस्ट। इट्स नॉट आवर जॉब। हमारा जॉब क्या है, जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, और एग्जाम में अगर आए तो हमें एटलीस्ट कुछ तो बोल पाए, है ना, दैट मे बी सफिशिएंट और नॉट, वो है ना। और सार्कोइडोसिस और वैसे भी ट्यूबरकुलोसिस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत मुश्किल है, समटाइम्स इट्स रियली डिफिकल्ट, है ना। तो दिस इज द पेरिलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नोड्यूल्स आर सीन इन रिलेशन टू द प्लूरल सरफेस। यहाँ पे क्या है, और ये देखो सेकेंडरी लोब्यूल की बाउंड्रीज हैं, ये सेकेंडरी लोब्यूल दिख रहा है, इसमें सेंटर में है, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्री लोबुलर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है, ये भी सेकेंडरी लोब्यूल है, ये सेप्टल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई सेंटर में भी है और कोई पेरिफेरी पे भी है। तो दिस इज ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्री लोबुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और दिस इज पेरिलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मल्टीपल नोड्यूल्स, प्लूरल नोड्यूल्स हैं या नहीं, प्लूरल नोड्यूल्स हैं तो फिर सब प्लूरल, सेप्टल और पेरीब्रोंकोवैस्कुलर, डिफ्यूज, नो प्रोडोमिनेंस, पेरिलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। पेरिलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्नोसिस सार्कोइडोसिस, सिलिकोसिस, लिम्फेंजाइटिक कार्सिनोमा। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मे बी टीबी, फंगल या मेट्स। और सेंट्री लोबुलर, हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, रेस्पिरेटरी ब्रोंकोलाइटिस, ब्रोंकियोलेवुलर कार्सिनोमा और एनी इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, देन व्हाट इज दिस। अब इसमें यहाँ पे फोकस करो, ये एक ये है, ये क्या है, सेंट्री लोबुलर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इमेजिन द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी लोब्यूल। अब सेकेंडरी लोब्यूल के सेंटर में आपके डॉट्स आ रही हैं, तो दीज आर द सेंट्री लोबुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी डीडी क्या हुई, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस और इन्फेक्शियस एयरवे डिजीज। ये क्या है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे में ही है, कहीं आप इसको पेरिलिम्फेटिक या सेंट्री लोबुलर डायग्नोज नहीं कर सकते। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की डीडीज क्या है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, मिलियरी फंगल इन्फेक्शन, हेमेटोजेनिस, मेटास्टेसिस, सार्कोइडोसिस, लैंगरहैंस सेल, हिस्टियोसाइटोसिस। तो बेसिकली पर्पज इज नॉट टू मेक अ डायग्नोसिस, क्योंकि सोच के देखो, एक छोटे से डिस्ट्रीब्यूशन या छोटे से उसके इतनी सारी डीडी, तो ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कंसिडर। व्हाट इज द पेशेंट हिस्ट्री, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशंस, है ना। खाली एक सिटी बेस में और एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन देख के डायग्नोसिस आप नहीं बना सकते, बट यू नो कि व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न इज देयर।